So hi everyone, welcome back to the channel. And today I will actually discuss a problem, maximum profit. So recently I was giving a contest where I faced this problem and found it really interesting. So I thought of sharing the solution with others as well. So we'll see how this problem maps to a very common occurring pattern of lead code questions, or let's say interview questions, and why that solution, that pattern is the correct solution for this problem. We'll also discuss the proof for the solution as well, right? Let us see. Let's jump into the problem statement. We have two strings a and b of same length n, consisting of characters 0 and 1. So basically we have two binary strings of length n, and then we'll need to consider two substrings s1 and s2, s1 of a and s2 of b, which are also of the same length, right? Choose two substrings, one from a and one from b, and you have to choose those substrings of the same length, and now perform exclusive OR of s1 and s2. And after performing exclusive OR, you will have another string. So let's call that string to be x. So this is the these are the things which you need to do. Then you have a profit function which you have given, which you have been given. The profit function contains two variables. The first variable is x, the second variable is x10. So this first we need to maximize the value of this profit function. So this profit function is floor of length of this x divided by 2 to the power decimal value of that x, right? So whatever the resulting string you get, let's call it x, you find the length, you divide it by 2 to the power whatever the decimal value for that resulting string you have, and you have this type of function, and now you need to maximize the value of this function, right, for given strings a and b. You are free to choose any substrings of a and b, but they should be of the same lengths. Fine. And now you need to find the maximum value of that profit function which you can get. The constraints are simple. We have 10 test cases for this problem. Each test case have two strings. The lengths of the strings may go up to 1000, right? So now you can pause here and think of a brute force solution. Will the brute force solution work? What will be the brute force solution? Brute force solution is simple. You generate all the substrings of a, you generate all the substrings of b, right? And then you take the bitwise XOR of all those substrings, like the substrings of the same lengths, two length substrings of a with two length substrings of b, and so on. So this is the naive solution. I will not be discussing that solution, also will not be discussing why that solution will not work. You can try that brute force solution. I will be jumping direct into the optimal solution, right? So let us discuss it. So we have two strings. Let's call the first string to be a, the second string is b. So let's take 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1. So this is string a, this is string b, both are of same length 6. The length is 6 here. And now you choose substrings from a, you choose substrings from b, you perform the bitwise operations. So we can see that we choose 1 0, we choose 0 0, 1 0 0 0, a substrings of length 2. Perform the bitwise XOR, you will get 1 0. We know, all of us know how bitwise XOR work. If we have similar bits, you will get 0. If we get different bits, we will get 1. So if we have 1 XOR 1, we will have 0. Fine. So this is the XOR operation. Basically it simply tells us how many differentiating bits that we have, right? So like here in this case, we can see that the differentiating bits are only at one position here. Hence in the resulting string we have only one set bit. So in the resulting string, the number of set bits simply represents the number of positions where the substrings had differentiating bits.
So it's a kind of a distance function. Okay, distance function, Hamming distance to be specific. So it's called Hamming distance. Okay, so now you get the resulting string. The length of the resulting string is 2. So 2 divided by 2 to the power XOR of these two will be this 1 0. So what will be the decimal value for 1 0? This is 2. So 2 to the power 2. So this is 1 by 2, 0.5, and that is my answer. So we but this is not the optimal, this is not the actual answer for the problem statement that we have been given. We need to maximize this answer, we need to maximize this value, we need to choose substring in such a way that this Hamming distance is minimized while this length is maximized, right? So let's write the profit function k divided by 2 to the power h. Here k is length of x, h is XOR of s1 and s2. Fine. So let me just see. No, it is a function of two variables k and h, and I need to maximize it. So pause here and think of it for, let's say, next 5 to 10 minutes, how you can solve this problem. You know what to do, and just think of it. So the purpose is to maximize the numerator and minimize the denominator. How I can do it? What minimum value the denominator can have? Think of it. Definitely 2 to the power h cannot be negative. It cannot be negative. Can it be 0? No, it cannot be 0. And this is the Hamming distance, the number of differentiating bits. So think over h. H is either 0 or it is non-zero, है ना? Why? Because either you have no differentiating bits or you have differentiating bits. दो strings हैं 0 1 0 1 1 0 1 0, है ना? इन दो स्ट्रिंग्स में या तो तुम्हारे पास अलग अलग बिट्स मिलेंगे तुम्हें हर पोजीशन पे, यहाँ अलग मिल गया, यहाँ अलग मिल गया, हेयर यू हैव डिफरेंट बिट्स, यहाँ अलग मिल गया, या फिर सेम ही मिल जाएंगे. ये देखो 0 0 0, इससे कम तो कुछ जा ही नहीं सकता, इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो एच या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा. तो व्हाट डज दैट मीन कि द बेस्ट वी कैन डू कि एच को 0 कर सकते हैं, है ना? तो एच को अगर 0 कर दें, लाइक ये मैं अपनी थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, हाउ आई थॉट द सोल्यूशन. एच को 0 कर सकते हैं, दैट मीन्स अगर एच 0 हो जाएगा तो 2 to the power 0 1 हो जाएगा. सो दिस इज द बेस्ट आई कैन गेट, 1. फाइन. अब वो कब होगा? जब कोई डिफरेंशिएटिंग बिट होगा ही नहीं. और वो कब होगा? जब दोनों स्ट्रिंग्स सेम होंगी, कि S1 और S2 आइडेंटिकल है. S1 और S2 आइडेंटिकल है ना? ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, तो मतलब वी नीड टू चूज टू सब स्ट्रिंग्स फ्रॉम A एंड B, S1 एंड S2, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है ना? कोई उसमें डिफरेंशिएटिंग बिट है ही नहीं. वो करने के बाद अब आते हैं डिनोमिनेटर पे. चलो एक पॉइंट कंक्लूड कर लिया हमने. न्यूमरेटर पे आते हैं. न्यूमरेटर वी हैव k. अब इसको मैक्सिमाइज करना है, गिवन दैट दोनों स्ट्रिंग्स सेम है. वो तो प्रूव कर ही दिया है कि दोनों स्ट्रिंग्स सेम है ही है. तो k सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि भाई सबसे बड़ी दो स्ट्रिंग्स उठा लो, है ना, जो सेम हो. कि एक मेरे पास a है स्ट्रिंग, एक b है, तो इनमें से कोई ऐसी सब स्ट्रिंग उठाओ, है ना, जो बिल्कुल सेम है और उसकी लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा है. वो क्या होता है? वो लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग होता है. राइट, वही होता है.
तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग निकालना है मतलब अपने को, ये कंक्लूजन निकला है प्रॉब्लम का कि भाई दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, एक कुछ प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, और उसका जो कंक्लूजन यही है कि वी नीड टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग बिटवीन दीज टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी, और बस उसकी लेंथ रिटर्न करनी है ना। यही आंसर हुआ, के ही हो गया, क्यों, बिकॉज के डिवाइड बाय 2 h तो 0 हो जाएगा, तो के ही हो गया आंसर। और के क्या है मेरा, लेंथ ऑफ एक्स, और ये सबसे ज़्यादा तब होगा जब अपन लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग निकालेंगे। ठीक है, तो यही था इसका सोल्यूशन, दिस वाज द सोल्यूशन कि दो स्ट्रिंग्स दे दी, एक फंक्शन दिया है, एलसीएस निकाल के दे दो, एलसीएस की लेंथ निकाल के दे दो, रिटर्न कर दो उस फंक्शन से, बस। ठीक है, ठीक है। हाँ, देयर इज़ अ लाइक वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रिंग एंड सबसीक्वेंस, लेकिन इनमें इनके कोड मतलब कुछ जगह पे सॉल्यूशंस जो दिए हैं उनमें इस चीज़ को कंफ्यूज किया हुआ है। दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। सबस्ट्रिंग एक सबसेट है सबसीक्वेंसेस का। सबसीक्वेंस इज समथिंग लाइक दिस इज सबसीक्वेंस, ये हो गई आपकी सबस्ट्रिंग्स, है ना। सबसीक्वेंसेस तो बहुत ज़्यादा होती हैं, सबस्ट्रिंग्स एक सबसेट होता है सबसीक्वेंसेस का। तो अपने को बस यही कंसिडर करना है, ये वाला। अगर पूरा करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, तो कुछ जगह पूरा किया हुआ है, तो यू नीड टू मतलब उसको थोड़ा देख लेना। ओके, अब लेट्स सी हाउ वी कैन प्रूव दैट दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज इंडीड द सॉल्यूशन। प्रूव कैसे कर सकते हैं इसको? देखो, वी हैव अ फंक्शन हमारे पास है प्रॉफिट फंक्शन, दो वेरिएबल्स का, के और एच का, k डिवाइडेड बाय 2h, है ना, दो वेरिएबल्स हैं। अब अपन रिमेंबर हम कैसे करते थे, हाउ वी हैड सम इक्वेशंस लाइक y इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c, है ना। वी वांट, तो ये पैराबोला है एक, है ना। तो ये एक, तो हम हाउ डिड वी यूज टू फाइंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, यही तो करना है इसमें, मैक्सिमम करना है, मैक्सिमाइज करना है इसको, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी। तो अगर मान लो कोई कर्व जा रहा है कुछ भी ऐसे करके, है ना, तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो टर्न करता है, जैसे यहाँ टर्न कर रहा है ना, दिस इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू मैक्सिमम होती है किसी भी फंक्शन की, जो हमने यहाँ प्लॉट किया हुआ है। तो कैसे निकालते थे वो, हम डेरिवेटिव लेके dy/dx ले लेते थे, उसको 0 सेट कर देते थे, x की कुछ वैल्यू आ जाती थी, वहाँ पे अपन के y की वैल्यू मैक्सिमम होती थी। दैट्स हाउ वी यूज्ड टू डू यूजिंग डेरिवेटिव्स। बस वही करना है यहाँ, बस इतना है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल वेरिएबल, है ना। तो दो वेरिएबल्स के लिए क्या सोल्यूशन था, वी स्टडीड अबाउट पार्शियल डेरिवेटिव्स आई थिंक, है ना। सो पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि तुम एक वेरिएबल को लेकर चलो, दूसरे को तब कांस्टेंट मान लो, ठीक है। तो समथिंग लाइक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन p विद वन वेरिएबल, लेट्स कॉल इट h, सच दैट k को कांस्टेंट रख दो, है ना। अब डिफरेंशिएट कर दो p को विद रिस्पेक्ट टू h, मतलब इसको h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा, तो ये एक्सपोनेंशिएशन है 2⁻⁻h, k तो कांस्टेंट है 2⁻⁻h, तो इस तरह का कुछ हो जाएगा -h, और यहाँ हो जाएगा आपका 2⁻⁻h हो जाएगा, और इसको करेंगे जब तब आ जाएगा अपने पास ln ऑफ 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन, राइट। k इज़ अ कांस्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू। देखो k पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरी चीज़ h भी पॉजिटिव है, हैमिंग डिस्टेंस पॉजिटिव मीन्स नॉन ज़ीरो, सॉरी नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव है, h नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी हो सकता है ये, है ना। अब ये पूरी टर्म खुद से अपने आप में पॉजिटिव ही रहेगी, नॉन नेगेटिव ही रहेगी, है ना। k पॉजिटिव, k अपना पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ये तो पॉजिटिव टर्म है ही, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, और उसके इस पूरी टर्म के आगे नेगेटिव साइन रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल हमेशा नेगेटिव रहेगा, है ना। ठीक है,
हम इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, राइट, वी वांट टू मिनिमाइज दिस डिनोमिनेटर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सोचो। व्हेन वी विल हैव मिनिमम वैल्यू फॉर दिस, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू h जो है वो मिनिमम हो जाए। जीरो, जब जीरो होगी, राइट, है ना, तभी तो मैक्सिमम मिलेगा, तो मिनिमम मिलेगा। ये तो वो जीरो कब होगी, ये तो जीरो, ये जीरो हो सकता है कि नहीं, कांस्टेंट है, ये जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स लेनी है अपने को। ये जीरो नहीं है, ये भी टर्म जीरो नहीं हो सकती। तो क्या h को जीरो कर दो, h जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब होगा h जीरो, व्हेन जो डिफरेंट जो बिट्स हैं हमारी पोजीशंस पे, मतलब वी डू नॉट हैव एनी डिफरेंशिएटिंग बिट, दोनों स्ट्रिंग्स सेम है, तो मतलब हर पोजीशन पे सेम ही बिट आएगा S1 और S2 के, जिसका मतलब ये है कि h जीरो होगा, हैमिंग डिस्टेंस जीरो होगा, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म जीरो होगी, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज जीरो हो गया, है ना। दैट मीन्स h हैज़ टू बी ज़ीरो। तो इसका कंक्लूजन ये है कि हमें स्ट्रिंग्स सेम चूज़ करनी है। सो दिस इज़ द कंक्लूजन फॉर दिस, ठीक है। तो ये चीज़ तो प्रूव होगी, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस डिनोमिनेटर चूज द सेम सब स्ट्रिंग्स, भले वो एक ही कैरेक्टर की हो। अब आते हैं k पे, विच इज़ डिनोमिनेटर। तो पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं इस फंक्शन p का विद रिस्पेक्ट टू k। तो डेल्टा p डिवाइड बाय डेल्टा k, h को कांस्टेंट रखा, हमारे पास आ गया 1/2h। अब इस पे आते हैं, हमें इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है, राइट, उसको तो हमें मिनिमाइज करना था, इसको मैक्सिमाइज करना है। अब देखो इसमें h जीरो है, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 टू द पावर 0 1, है ना। या ऐसे सोचते हैं कि दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज, तो वी कैन सी दैट कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये कभी जीरो नहीं होगी, या जीरो पे कभी आएगी नहीं और उससे पीछे भी नहीं जाएगी, राइट। तो दिस इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, या लेट्स से पॉजिटिव, हाँ ये हमेशा पॉजिटिव, दिस इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। तो फॉर दैट दिस एंटायर टर्म इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगी, राइट। तो व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब है कि k जितना ज़्यादा बड़ा होगा, ग्रेटर द k, है ना, इतना ज़्यादा आपका जो आंसर है वो मैक्सिमाइज करेगा। तो k सबसे बड़ा कब हो सकता है, k सबसे ज़्यादा कब बड़ा हो सकता है, k इज़ नथिंग बट द लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रिंग x। तो रिजल्टेंट स्ट्रिंग जो कि हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, जो बनेगी आपकी सेम सबस्ट्रिंग से, मतलब अपनी सेम सबस्ट्रिंग से। तो पहली और दूसरी की जो सबस्ट्रिंग्स हम उठा रहे हैं वो सेम होनी चाहिए, दे वुड बी सेम, S1 और S2 आर आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल भी सबसे बड़े वाली लेनी है, दिस इज व्हाट इट मीन्स, है ना। तो वो कब होगा, जब अपन लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग्स लेंगे, सब स्ट्रिंग लेंगे, लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग लेंगे, ओके। बस यही था इसका प्रूफ, मतलब ऑल्दो देयर कैन बी मल्टीपल प्रूफ्स, और तरीक़ों से भी प्रूफ किया जा सकता है, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ द लाइक वन ऑफ द सिंपलेस्ट आई थिंक। डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन है, दो वेरिएबल्स में डेरिवेटिव लेके जीरो सेट करके चेक कर लो बस, है ना। वी नीड टू मैक्सिमाइज द न्यूमरेटर, मिनिमाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो दैट्स ऑल आई थिंक, लेट्स जंप टू द कोड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। ठीक है, तो वी हैव दिस मैक्स प्रॉफिट फंक्शन k, जिसमें हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं k एंड q, एंड वी नीड टू मैक्सिमाइज इट, वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रॉफिट। और आंसर अपना सिंपल वही होगा,
LCS. LCS का कोड बहुत सिंपल है, यू नो. If you do not know how to find the longest common substring, you can go to the video I will be attaching in the description and learn about longest common substring. So let's go with the tabulation approach. n plus 1, तो n कैलकुलेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ वन ऑफ द स्ट्रिंग ओके. दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम है तो इसलिए एक ही वेरिएबल लिया. इफ इट वुड हैव बीन डिफरेंट देन n एंड m होता, राइट. तो इटरेट ओवर द फर्स्ट वन, पहले के हर पोजीशन पे जाते हैं. I स्टैंड्स फॉर k, I इज़ फॉर स्ट्रिंग k, एंड फिर j आता है, एक दूसरा पॉइंटर रखेंगे जो कि रहेगा q स्ट्रिंग के लिए. अब किसी आई और जे कैरेक्टर पे हम खड़े हुए हैं, हम क्या करेंगे, अगर हम चेक करेंगे कि अगर करंट कैरेक्टर जो है आई के का वो सेम है क्यू के जेथ कैरेक्टर से, तो इसका मतलब एक कैरेक्टर ऐड हो रहा है हमारे लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग में, ठीक है. तो इसका मतलब आई और जे पे जो वैल्यू होगी वो डी पी ऑफ आई माइनस वन और j माइनस वन तक जो सबस्ट्रिंग है उसमें एक कैरेक्टर ऐड हो जाएगा. और इसी तरह से अपने मैक्सिमाइज इसको अपडेट कर देंगे आंसर को, डी पी ऑफ आई जे. फाइनली विल रिटर्न दिस आंसर फ्रॉम दिस फंक्शन. दैट्स ऑल. दिस वॉज द सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. फाइन, ठीक है. लास्ट चीज़ डिस्कस करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है जो कि LCS की होती है, विच इज़ बिग ऑफ n स्क्वायर, n इंटू m या n स्क्वायर. ओके, सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एंड आई विल बी creating more such videos in the future, maybe discussing code forces contest, post contest discussions over the weekends. So I hope you enjoyed the video. See you in the next video. And I think, yeah, so you can think of simple variation if the strings are not of the same length, n and m. So a is of length n and b is of length m. So this is a simple follow up, you can think of it and try to find the solution. Okay, so thank you so much. See you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.